So students, we were talking about market segmentation and 4 types of segmentation. So first of all, we will try to understand geographical segmentation, and after that we will try to understand demographic segmentation, psychographic segmentation, behavioral segmentation. Let me tell you once more what are these categories. Basically, we have a huge a complete market, and as we have already studied and we have already known, and we know now that we do not all the people in one market or everybody in the market, they do not possess the same qualities. So there are different qualities, and that's why, because of their qualities and because of their geography and because of their other attributes, we have divided them into 4 categories. Number 1, geographical; number 2, demographical; number 3, psychographical; and number 4, behavior. Okay, when we talk about geographical segmentation, so we will try to understand that where is our market or where are our customers. Okay, what is their physical location? Physical location means basically we divide them into 3 categories. Category number 1, urban area; number 2, rural area; and number 3, suburban area. And next, demographic. Demographic means basically demography is the study of population. We have to understand population means we have to get something about some complete details about the age, gender, education, professions, and other aspects, and all the other aspects which are related to the population of the society or our market. Then psychographic. Psychographic means who are basically our customers. We have to understand psychologically, and how. Behavioral means how they go to market and how they purchase and when they purchase and what are their behaviors when they go to market for purchase. So these are the aspects we try to understand, and after understanding these aspects, we target the customer we select. So first of all, we'll discuss geographical segmentation, and geographical segmentation means we will see the geography of a nation or of a country or of a city, or we can say that the geography of the market. So in our geographic segmentation, we can have some nations, regions, and states, and countries, and subcontinents, and cities. And in geographical segmentation, we divide these in 3 different or 4 different in 4 different subcategories, like regions. Size of the area. Size of the area means that what is basic geography or how dense the population is there. And population density is very much important. I will tell you in details after some time. And the climate is very much important, whether the climate is hot or climate is cold or it is mixed. What is basic weather there, and we have to understand, so we can try to give our product. For example, if there is a hot season or summer season all the time in a society, so in hot season we cannot offer soup, and when there is cold season, so we are not supposed to offer them ice creams to a large number. So these are things which we cannot offer to our customers because of the geography or because of the climate of the market. So when we classify our market by regions, so in region we can say
that their continents, their countries, or their states, or there are some neighborhoods. Neighborhoods mean the countries next to our country or the host country. Size of the area means segmented according to the size of population. This is very much important. I was telling you about the density of a region or of a market. So first of all, what is density? Let's discuss this, and after that we will move forward. So students, density means that how many people are living in 1 kilometer in the in the location or in the area of 1 kilometer. So how many people living in square kilometer. Okay, for example, in Canada, in average 1 kilometer, almost 4 people are living in 1 kilometer. Okay, or let me give you some details about the density of the people of different countries. So students, as I was telling you about the density of different areas or different countries, the most dense country is Singapore, where almost 8,019 people are living in average 1 kilometer. Then it comes Hong Kong, where 7,126 people are living in 1 kilometer, and then there are some other countries, and in Bangladesh there are 1,265 65 people they are living in 1 kilometer. So this is basically called the density. Density means how many people living in 1 kilometer. How and why do we study this? It means if we have to reach, for example, 1,000 people in Canada, then we will have to walk, or we have to reach almost 250 kilometers. On the other hand, if we have to reach 1,000 people in Singapore, then we may reach 1,000 people after going to 200 meters almost. So this is very much important to understand that how many people living in the geographical area and what is the climate of the area. ओके जी, नेक्स्ट क्लाइमेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि हॉट होगा सीजन या कोल्ड होगा. अगर हॉट होगा तो फिर हम लोगों ने गर्म सीजन में, मिसाल के तौर पे हम मुल्तान में जून और जुलाई की गर्मियों में हम गर्म कपड़े नहीं सेल कर सकते, शॉल्स नहीं सेल कर सकते, ऊन की बनी हुई चीजें सेल नहीं कर सकते. क्यों सेल नहीं कर सकते? क्योंकि वहां का वेदर इजाजत नहीं देता कि हम वैसी चीजें वहां पे सेल करें. तो इसकी वजह ये होगी कि ये जो हम लोगों ने सेगमेंट्स बनाए होते हैं, इन सेगमेंट से हम लोगों को फायदा होता है. उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलेंगे जी. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो हमारा टॉपिक क्या आता है, इसमें क्या चीज आती है? मार्केट सेगमेंटेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि मुख्तलिफ किस्म की एज आती है लोगों की, जेंडर, इनकम, ये बेसिकली आती है आपकी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर. जब हम लोगों ने ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन अंडरस्टैंड कर ली, तो उसके बाद आती है हमारी दूसरी टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, जो कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है. और डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर खास तौर पे देखा जाता है, डेमोग्राफिक मींस द स्टडी ऑफ
ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हम लोगों ने बेसिकली पॉपुलेशन को स्टडी करना होता है कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है। पॉपुलेशन कैसे से मुराद ये है कि हमारी पॉपुलेशन जो है उसकी एज क्या है, हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें जेंडर क्या है, जेंडर से मुराद मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं। जैसे कि पाकिस्तान में आज से कोई 10-12 साल पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान में 52% जो है वो फीमेल्स है और 48% जो है वो मेल है। उसके बाद ये जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है उसमें जो सिचुएशन है वो जरा चेंज हुई है जी। तो जो करंट सेंसस हुआ है ये तो आज से 10-12 साल पहले की बात है, और जो करंट सेंसस हुआ है तकरीबन उसमें ये कहा जाता है जो फीमेल्स हैं वो तकरीबन पाकिस्तान में 49% है और मेल जो है वो 51% है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जेंडर क्या है हमारे लोगों की, हम लोगों ने फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनानी है या हम लोगों ने मेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनानी है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी टू नो अबाउट दी प्रोडक्ट। देन सोशल क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और सोशल क्लास की बेसिकली जो कैटेगरीज होती है वो 3 होती हैं। एक होती है आपकी अपर क्लास, एक होती है आपकी मिडिल क्लास और एक होती है आपकी लोअर क्लास। ठीक है, उसके अलावा कैटेगरीज मुख्तलिफ मार्केटिंग मैनेजर्स और मुख्तलिफ जो हमारे फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट और जो स्कॉलर्स होते हैं वो इसमें चेंजेस भी कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 कैटेगरीज होती हैं। इसके अंदर एक वर्किंग क्लास भी आ जाती है, उसके अलावा कुछ स्ट्राइवर्स स्ट्रगलर्स भी आ जाते हैं। वो फिलहाल हम अभी डिस्कस नहीं करते, ये जब हमारी डिटेल में डिस्कस करने का टाइम आएगा तो फिर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइफस्टाइल वो कौन से जी रहे हैं, मिसाल के तौर पर उनका प्रोफेशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, उनके यहाँ शादियां कैसी होती हैं, ठीक है, और वो गाड़ियां किस तरह के रखते हैं, किस टाइप के रखते हैं, गाड़ियों का बेसिक पर्पस क्या होता है, वो घर कैसे रहते, घर किस तरह के उनके होते हैं, उन घरों में वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं। ये तमाम के तमाम चीजें जो है वो हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। सो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें, स्टडी कर सकें कि हमारी पॉपुलेशन बेसिकली क्या है और हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया जी। उसके बाद हमारा अगला स्लाइड में जाएंगे जी, नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने दोबारा से डिटेल में देखते हैं कि हमारी एज जो है वो बड़ी मैटर कर रही होती है। ठीक है, और जब हम लोग एज की बात करते हैं तो भी हमारी कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले हमारे इन्फेंट्स आते हैं, उसके बाद हमारे किड्स आते हैं, फिर हमारे टीन एजर्स आते हैं, फिर हमारी यूथ आती है, उसके बाद हमारे मिडिल एज वाले लोग आते हैं, उसके बाद हमारा सीनियर सिटीजन या ओल्ड एज वाले लोग आएंगे। ठीक है जी। अब एग्जांपल यहाँ पे अगर टूथपेस्ट की है तो आपको मालूम होगा कि जब हम लोग मार्केट में जाएंगे तो वो लोग जो अडल्ट्स हैं, यानी कि जो टीनेजर्स हैं या यूथ हैं या मिडिल एज के हैं या ओल्ड एज के हैं, तो उनके लिए टूथपेस्ट अलग होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे किड्स के, इन्फेंट्स तो यूज नहीं करेंगे, जब हम किड्स की बात करेंगे, छोटे बच्चों की बात करेंगे, तो उनके जो टूथपेस्ट हैं वो डिफरेंट होंगे। इसकी वजह क्या है कि छोटे बच्चे जब टूथपेस्ट यूज करते हैं तो वो टूथपेस्ट को टेस्ट उनको बहुत अच्छा लगता है तो वो निगल लेते हैं, तो इसलिए उनके टूथपेस्ट में ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसी कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो जो अगर वो निगल भी ले तो उनकी सेहत जिससे खराब नहीं होती। सो वी हैव टू different types of toothpastes in the market, one for adult and one for children. Okay, and this is called age based segmentation. उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, जेंडर। ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड है, और ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मेल ओरिएंटेड है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, न्यूट्रल से मुराद ये है कि विच कैन बी यूज्ड बाय मेल एंड विच कैन बी यूज्ड बाय फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, आज से बहुत अरसा पहले जब स्मार्टफोन नए आए थे, शायद 2008 या 2010 या 12 की बात है, जब
जब स्मार्टफोन्स आते थे तो स्मार्टफोन्स जो है वो दो कलर में आते थे, नंबर 1 ब्लैक और नंबर 2 व्हाइट। और जब किसी ने व्हाइट स्मार्टफोन खरीद लिया होता था तो उसको लोग कहते थे कि भाईजान आपने तो लेडीज कलर ले लिया है। इट मींस दिस वाज कंस्ट्रक्टेड और दिस वाज मैन्युफैक्चर्ड फॉर द लेडीज। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की जो क्रीम्स होती हैं वो क्रीम्स जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए बनी होंगी, उनकी स्किन के लिए। कुछ क्रीम्स सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए बनी होंगी। और अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके आए तो शेविंग की जो किट होगी, दिस शेविंग किट इज नॉट मेंट फॉर फीमेल्स, दिस इज मेंट फॉर मेल। ओके। और इसी तरीके से जो मेकअप का सामान है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक चीज का नाम लेते हैं लिपस्टिक का, तो ये लिपस्टिक इज समथिंग विच इज नॉट मेड फॉर मेल, दिस इज मेड फॉर फीमेल। हेयर एक्सटेंशंस, हेयर एक्सटेंशंस, दीज आर द थिंग्स जो फीमेल्स के लिए हैं, और हेयर विग्स जो हैं वो मेल्स के लिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्हीकल्स, जो गाड़ियां होती हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल जो स्मार्टफोन्स आते हैं वो चूंकि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आते, वो किसी भी कलर में आते हैं। सो इस हवाले से आजकल जितने भी मोबाइल आते हैं वो मेल एंड फीमेल कोई भी यूज कर सकता है। इसमें अब इस तरह की कैटेगरीज नहीं बनी कि एक कलर जो है वो फीमेल्स का है और एक मेल्स का है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ क्लॉथिंग, कुछ खास किस्म के कपड़े हैं, मिसाल के तौर पे साड़ियां हैं, वो सिर्फ फीमेल्स पहनेगी, मेल्स विल नॉट यूज दिस। हेयर ड्रेसिंग, वो फीमेल्स के बाल जो है वो चूंकि लंबे होते हैं, मेल्स के रिलेटिवली कम लंबे होते हैं, छोटे होते हैं। इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की मैगजीन्स है जो सिर्फ मेल्स के लिए होंगी, कुछ ऐसी होगी जिसमें फिटनेस की चीजें होंगी, एक्सरसाइज के हवाले से कुछ लिखा होगा जिसमें इंटरेस्ट मेल्स को होगा, और कुछ जिसमें ये ब्यूटी की और कॉस्मेटिक्स और इस हवाले से कुछ चीजें तो सिर्फ फीमेल्स की होंगी, और कुछ चीजें हमारी ऐसी भी हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकती है। सो इट मींस कि इन दिस slide we have studied about the gender, and we have some products which are meant or which are made only for male, and some products they are made only for female, and there are some other products which are made for both male and female. So next slide पे जाएंगे तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाता है इनकम। ठीक है, इनकम के हवाले से जैसे बच्चों मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया है कि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक होता है अपर क्लास, एक होती है मिडिल क्लास और एक होती है लोअर क्लास। अपर क्लास जो होती है वो बेसिकली अफ्लुएंट लोग होते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और किस सबसे ज्यादा अमीर लोग होते हैं। इन लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, और लो लेवल की रिक्वायरमेंट्स और उनकी नीड्स अलग होंगी। और यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है कि बहुत सी जो कंपनीज हैं वो टारगेट करती हैं सिर्फ और सिर्फ अफ्लुएंट लोगों को, अमीर लोगों को, और उन अमीर लोगों को जो प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे वो प्रोडक्ट्स जो होंगी वो बहुत ज्यादा लग्जूरियस और अच्छी क्वालिटी वाली और अच्छी और कन्वीनियंस और सर्विस वाली, कन्वीनियंट सर्विसेज भी ऑफर करेंगे और अच्छी कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स जो है वो भी ऑफर करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं एक कार जिस कार का नाम है फेरारी, तो ये जो फेरारी है ये गरीब लोग नहीं परचेज कर सकेंगे, ये बहुत अमीर लोग परचेज करेंगे, और इसका आप अखबार में इस तरीके का नॉर्मल एड भी नहीं देखेंगे। और दे इन दिस category or in this situation companies do not go to general people to sell their product, they target only affluent people. affluent से मुराद they target only अमीर people, rich people, पोश इलाके में जाके वहीं पे ये चीज सेल करेंगे, किसी और जगह पे सेल नहीं करेंगे। ठीक है, और गुड एग्जांपल जो यहाँ पे आ जाएंगे वो है कॉर्ट्समैन, रेड बुल। अब रेड बुल जो है ये वो कोल्ड ड्रिंक है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव से मुराद ये है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये तकरीबन 150 से
तकरीबन 250 रुपीज तक ये रेड बुल आपको मिलेगा एनर्जी ड्रिंक। लेकिन